Hello everyone, welcome to Career Launcher. Guys, hope our series on LRDI is helping you to understand the concepts related to this section. We have two series going on simultaneously. One is LRDI Basics to the Advanced level, where we solve sets from very basic and also discuss the concepts related to different topics like arrangements, Venn diagrams. If you're new to the CAT and struggling in LRDI, please follow that series. That will going to help you a lot. Simultaneously, we have this series which is LRDI Satir series, where we are solving advanced level LRDI sets which are very much aligned to the pattern of CAT. This series also includes previous year questions. So guys, today we are going to solve a set which came in CAT 2017 slot 1. Let's look at the set. So देखो क्या हो रहा है. So there are 21 employees working in a division, out of which 10 are special skilled employees. So कितने total employees कितने हैं? Total employees is 21 total. This is total number of employees, right? Skilled is a total number of special skilled employees. Look at this. This is 10. 10 are what? Special skilled employees, right? And the remaining are regular skilled. आप सोच के देखो रेगुलर स्किल्ड कितने हो जाएंगे. टोटल कितने हैं? टोटल इज 21 सॉरी. स्पेशल स्किल्ड कितने हैं? 10. तो रेगुलर स्किल्ड कितने हो जाएंगे? दैट इज इक्वल्स टू 11, राइट. सो टोटल इज 21, स्पेशल स्किल्ड इज 10, रेगुलर स्किल्ड इज 11. During the next 5 months, the division has to complete 5 project every month. 5 project every month. That means what? 5 project हर महीने करने पड़ेंगे, है ना? So during the next 5 months, the division has to complete 5 projects every month. Every month, हर month में 5. अगले 5 महीने तक हर महीने 5 project करने पड़ेंगे. So in total 5 महीने में 5 months में कितने projects हो गए? 25 projects. So अगले 5 महीने में 25 projects करने हैं, ठीक है? Now 5 projects are out of these 25 projects, 5 projects are challenging. Okay, challenging वो मैं challenging को CP बोल देता हूँ. It's a challenging projects, right? वो क्या है? 5 है. And the remaining are standard projects. तो इसको standard को SP बोलते हैं. तो SP कितने हो जाएंगे? 20. तो challenging projects कितने हो गए? 5. Special standard projects कितने होंगे? 20, right? Each of the challenging project has to be completed in different months. सारे भी जो भी challenging projects है ना, सबको अलग अलग months में complete करना है. Okay, मतलब एक फर्स्ट मंथ में एक होगा, सेकेंड मंथ में दूसरा होगा, थर्ड मंथ में तीसरा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट. एवरी मंथ 5 टीम्स T1, T2, T3, T4, T5 वर्क ऑन वन प्रोजेक्ट. ओके, ठीक है. मतलब कितने? देखो टोटल 5 टीम है और इन 21 जो 21 पीपल है, 21 जो एम्प्लॉयज है, उनको इन 5 टीम में डिवाइड किया गया और इन 5 टीम को अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करना है. और कितने प्रोजेक्ट्स है? 5 प्रोजेक्ट्स है. हर महीने 5 प्रोजेक्ट है और 5 टीम्स है. यही पांचों टीम पांचों प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, ठीक है ना. आगे T1, T2, T3, T4 and T5 are allotted a challenging project in the first, second, third, fourth and fifth month. Now this word is very important. 5th month respectively. देखो आगे respectively लिखा हुआ है. And this respectively word का मतलब क्या हो गया? देखो क्या हो रहा है कि T1 को फर्स्ट मंथ में दिया जाएगा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, T2 को सेकेंड मंथ में दिया जाएगा, T3 को थर्ड मंथ में देंगे, T4 को फोर्थ एंड T5 को फिफ्थ मंथ में चैलेंजिंग प्रोजेक्ट दिया गया. तो ये ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, टाइमलाइन डिफाइन कर दिया कि मंथ 1 में किसको देंगे, मंथ 2 में किसको देंगे, एंड सो ऑन, व्हिच इज ऑलरेडी गिवन टू अस, राइट. ठीक है, आगे देखते हैं. द टीम असाइन्ड द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट हैज वन मोर एम्प्लॉय देन द रेस्ट. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट. द टीम असाइन्ड द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट हैज वन मोर एम्प्लॉय देन द रेस्ट. ठीक है, अब देखो मेरे पास कितने एम्प्लॉयज है? 4 एम्प्लॉयज है. ठीक है, तो 4 एम्प्लॉयज कौन कौन से? देखो T1, T2, T3 एंड T4. अब सॉरी एक और T5. अब है ना, देखो क्या, जिसको अब हर महीने में तो एक ही चैलेंजिंग प्रोजेक्ट मिलने वाला है, राइट. सो लेट्स से कि T1 को चैलेंजिंग प्रोजेक्ट मिल गया, तो बाकी सबको स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट ही मिलेंगे, स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट ही मिलने वाले, राइट ना. अब देखो क्या लिखा है. द टीम असाइन्ड द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट हैड वन मोर एम्प्लॉय देन द रेस्ट. एक एम्प्लॉय ज्यादा होना चाहिए, मतलब जो भी है, अगर मैं यहाँ पे 4 दे दूं तो 4 बाकी सबसे ज्यादा होने चाहिए, ठीक है. तो अब देखना ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करूँ तो एक ही चीज समझ में आएगा आपको, ठीक है, कि यहाँ पे सिंस अपने पास कितने हैं, 5 टीम्स है. आप 5, 5, 5, 5 एंड 5 और लेट्स से दिस इज 6, 5, 5, 5, 6, 5
4 3 and 2, या फिर 5 4 3 2 1। ऐसे नंबर्स आप नहीं दे सकते हो। और क्यों नहीं दे सकते, लेट मी एक्सप्लेन दिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, ठीक है, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट वाले पे तो 6 सबसे ज्यादा मिल गया, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, दैट the team assigned the challenging project has one more employee देन द रेस्ट ऑफ ऑल। मतलब सबसे एक ही ज्यादा होना चाहिए। मतलब जिसके पास अगर चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है उसके पास जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय है वो अलग होगा, लेकिन बाकी के पास क्या होने चाहिए, बाकी सबके पास सेम नंबर ऑफ एम्प्लॉय हो सकता है, तभी तो सारे टीम से एक ज्यादा होगा ये। और इन दैट केस द पॉसिबिलिटी, बिकॉज वी नो द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय विच इज कितना 21 है, तो हम लोगों को क्या देना पड़ेगा 4 4 4 4 एंड 5। ठीक है, तो चैलेंजिंग प्रोजेक्ट वाले को 5 देंगे और बाकी सबको 4 4 देंगे। आई थिंक दिस लाइन इज प्रीटी मच क्लियर टू एवरीवन। सबको समझ में आ गया ये वाला लाइन, राइट? ठीक है, द टीम असाइन्ड द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट हैज वन मोर एम्प्लॉय देन द रेस्ट। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इन द फर्स्ट मंथ T1 हैज वन मोर AC देन T2। ओके, इन द फर्स्ट मंथ, पहले मंथ में T1 के पास वन मोर AC मतलब स्किल्ड एम्प्लॉयज, राइट? तो T1 हैज वन मोर AC देन T2, T2 हैज वन मोर देन AC T3 has one more than T4 and T4 has one more than T5। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है, यूज करेंगे बाद में। Now between two successive months the composition of the team changes as follows। देखो कैसे चेंज होता है। The team allotted the challenging project get 2 AC from the team which was allotted the challenging project in the previous month। ओके, ठीक है, समझाता हूँ। देखो T1 T2 T3 and T4, मान लो मंथ 1 में इसके पास चैलेंजिंग प्रोजेक्ट थे, तो मंथ 2 में इसके पास चैलेंजिंग प्रोजेक्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा, मान लो इसके पास 5 या 4 5 लोग हैं इसके पास, सिंस इसके पास चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है तो इसके पास 5 लोग होंगे। अब 5 में से 4 AC हैं तो 1 RE मान लेते हैं। ठीक है, 5 लोग हो गए। तो क्या बोल रहा है कि अब सेकेंड मंथ में देखो इसके पास CP शिफ्ट हो गया, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट इसके पास हो गया, तो क्या हुआ देखो, the team allotted the challenging project gets 2 AC from the team which was allowed the challenging project in the previous month, right? तो फर्स्ट मंथ में इसको चैलेंजिंग प्रोजेक्ट मिला था, तो इसके 2 AC किसके पास शिफ्ट हो जाएंगे, इसके पास हो जाएंगे। तो यहाँ से 2 AC यहाँ पे आ जाएगा, और ऑलरेडी इसके पास मान लो 2 AC पहले से भी होंगे, तो टोटल 4 AC हो जाएंगे। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर। इन एक्सचेंज 1 RE इज शिफ्टेड फ्रॉम फॉर्मर टू द लेटर। ठीक है, क्या हुआ, उसमें से देखो, तो इसमें से 2 AC इसमें आ जाएंगे और यहाँ से यहाँ पे 1 RE चला जाएगा। ठीक है, दिस इज 1। ठीक है, सेकंड, after the above exchange if T1 has any AC and T5 has any RE। okay, देखो अब क्या हो रहा है कि इसके बाद अगर T1 and T5 में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो क्या बोल रहा है, if T1 has any AC and T5 has any RE then 1 AC is shifted from T1 to T5। अगर इसके पास T1 से T5 1 AC चला जाएगा, 1 AC, और T5 से T1 पे क्या आएगा 1 RE। लेकिन कंडीशन क्या है, इनके पास होना चाहिए देने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ से बिना AC को भेजे हुए यहाँ से RE को मंगा लिए, या फिर यहाँ से एक AC आ गया लेकिन यहाँ से RE भेजने के लिए मेरे पास है ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, और देखते हैं आगे। एंड 1 RE शिफ्टेड फ्रॉम T1 to T5। Also, if T2 has any AC and T4 has any RE, then 1 AC is shifted from T2 to T4 and 1 RE is shifted from T2। सेम चीज किसके साथ हो रहा है, T2 T4 के साथ हो रहा है, T2 and T4। तो T2 से 1 AC उधर जाएगा और T4 से 1 RE इधर जाएगा। ठीक है, दिस वाज द सेकंड। ठीक है, नाउ each standard project has a total of 100 credit। so standard project कितने क्रेडिट का है, 100 का है, and the challenging project is of 200 credit points। ठीक है, now credit points are equally shared between the employee included in that team। ठीक है, now इनके questions एक बार आप फटाफट questions पढ़ लो and then look at the solution। ठीक है, चलो let's try to solve this set। ठीक है, सो टू सॉल्व दिस सेट वी नीड दिस टेबल, जहाँ पे हम लोग अपने टीम्स को एंड मंथ को उसको अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स से यहाँ पे टीम्स कर देता हूँ। टीम इधर टीम हो जाएगा एंड दिस इज लेट्स से मंथ्स। सो लेट्स से दिस इज T1 T2 T3 T4 and T5 and months 1 month 2 month 3
मंथ 4 एंड मंथ 5। ठीक है, ये 5 मंथ्स हो गए अपने पास। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखो ध्यान से, द टीम असाइंड अ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट हैज वन मोर एम्प्लॉय देन T2 देन द रेस्ट, राइट। तो अब हम लोग को ये भी पता है कि टीम 1 को फर्स्ट महीने में चैलेंजिंग प्रोजेक्ट मिला, तो C4 चैलेंजिंग यहाँ कर देते हैं। यहाँ पे भी चैलेंजिंग सेकंड में T2 को सेकंड मंथ में मिला, T3 को थर्ड मंथ में मिला, T4 को फोर्थ मंथ में मिला एंड T5 को फिफ्थ मंथ में मिला। ठीक है, नाउ वी ऑल्सो हैव अंडरस्टूड कि जहाँ पे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट होगा वहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने होंगे, 5। दोस्तों दिस विल बी 5, यहाँ पे 5 कर देते, यहाँ पे 5 कर देते, दिस इज 5, दिस इज 5 एंड ये भी 5 ही होगा। एंड बाकी हर जगह क्या होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने होंगे, 4 होंगे। सो आई राइट 4 हियर। सो यहाँ पे 4, दिस इज 4, दिस इज 4, this is 4 and this is also 4. Similarly ये 4 होगा, this is 4, ये and ये this is also 4, this is 4, this is 4, 4 and 4, this is 4। सारी जगह जहाँ पे CP है मतलब चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स है, उनको छोड़ के हर जगह क्या होंगे, नॉर्मल 4 ही आने वाले हैं क्योंकि वो स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट्स हैं। सो दिस विल बी 4 एंड दिस विल ऑल्सो बी 4। Similarly this is 4। Now after doing this we know that all the for all the projects the number of employees we know, है ना। अब आगे देखते हैं, चलो अब यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, in the first month T1 has one more AC than T2, T2 has one more AC than T3, T3 has one more AC than T4, T4 has one more AC than T5। ठीक है, तो मान लो अगर ऐसा लिख लेते हैं T1, T2, T3, T4 एंड T5। T5 के पास लेट्स से x नंबर ऑफ AC है, तो T4 के पास कितना हो जाएगा, x प्लस 1 होगा, T3 के पास कितना होगा, x प्लस 2, T2 के पास x प्लस 3 एंड T4 के पास कितना, x प्लस 4, राइट। और अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो कितने होने चाहिए, बिकॉज दीज आर ACs। देखो ACs के बारे में बात करें, स्पेशल स्किल्ड एम्प्लॉइज, और स्पेशल स्किल्ड एम्प्लॉइज है कितने, 10। तो इन सबको ऐड करने पे मेरे को कितना मिलना चाहिए, 10 मिलना चाहिए। सो सबको ऐड करा, सो दैट इज इक्वल टू 10। सो x प्लस x 3x 4x एंड 5x, सो दिस इज 5x प्लस 4 3 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 10 एंड दैट मीन्स 5x का वैल्यू कितना हो गया, 0। मतलब x का वैल्यू कितना, 0, x का वैल्यू 0। दैट मीन्स व्हाट, नाउ आई कैन से यहाँ पे अब मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि T5 है 0 AC, और इसके पास अगर 0 AC है और इसके पास टोटल 4 एम्प्लॉय है तो 3 RE होंगे। अब T4 के पास T5 से 1 ज़्यादा है, सो दिस विल बी 1 AC, और T3 के पास T4 से 1 ज़्यादा है, सो दिस विल बी 2 AC, T2 के पास इससे 1 ज़्यादा, सो दिस विल बी 3 AC, एंड फाइनली अब T1 के पास T2 से 1 ज़्यादा, तो कितना हो जाएंगे यहाँ पे 4 AC। अब AC प्लेस्ड है, वी नो द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे 4 टोटल 4 है, 1 AC है, तो कितना हो जाएगा 3 RE, फिर यहाँ पे 2 RE हो जाएगा बिकॉज टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इज 4, फिर वहाँ पे 1 RE, और यहाँ पे भी 1 RE, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, 5 है। सो दिस इज हाउ ये मेरा फर्स्ट मंथ का काम हो चुका है। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द सेकेंड मंथ। अब सेकेंड मंथ के लिए हमारे पास कंडीशन देखने पड़ेंगे, बिकॉज बिटवीन 2 सक्सेसिव मंथ्स द कंपोजिशन कैसे चेंज हो रहा है ये दिया हुआ है। देखो अब एक बार जल्दी से कंपोजिशन कैसे चेंज हो रहा है देख लेते हैं। द टीम allotted a challenging project get 2 AC from the team which was allotted the challenging project in the previous year, and in exchange 1 RE is shifted from former team to the later team। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, टीम 1 को चैलेंजिंग प्रोजेक्ट मिला है फर्स्ट वाले में, तो अगले फर्स्ट मंथ में, तो सेकेंड मंथ में किसको मिलेगा, टीम 2 को मिलेगा। टीम 2 के पास अगर है तो टीम 1 से 2 AC टीम 2 में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से पहले टीम 2 के पास देखो कितने ACs है, 3 ACs है, तो 2 और आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 + 2 कितने, 5 ACs हो जाएंगे। सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 5 ACs, दिस इज 5 AC। ठीक है, और 5 AC है, और यहाँ से 1 RE T1 में चला जाएगा। यहाँ पे देखो इन एक्सचेंज 1 RE शिफ्टेड फ्रॉम फॉर्मर टू द लेटर, तो यहाँ से कितने बचेंगे, 1 RE एक ही इसके पास था, तो क्या बचेगा, अब 0 बचेगा, 0 RE हो गया इसके अंदर। और यहाँ पे क्या हो गया, 2 ACs, तो पहले 4 ACs थे, 2 ACs को टीम 2 भेज दिया तो बचे कितने, 2 SE बच गए, और कितने बचेंगे, 1 RE T2 से आया तो कितने हो जाएंगे, 2 RE हो जाएंगे। दिस इज द टीम 1 के अंदर ऐसा हुआ।
अच्छा, इतना होने के बाद क्या हो रहा है, आफ्टर दिस एक्सचेंज T1 एंड T5 में चेंजेस आने वाले हैं, T1 T5, T1 से 1 AC जाएगा और T5 से RE आएगा, T1 से AC और RE आएगा, ठीक है। T1 में AC है, हाँ है, तो यहाँ से 1 AC चला जाएगा T5 में, तो यहाँ पे 0 AC है, 1 AC आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 AC बनेगा, और 1 RE विल शिफ्ट, तो कितना बचेगा, 2 RE हो जाएगा, ठीक है। अब वहाँ यहाँ से 2 RE शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे 3 RE हो जाएगा और 1 AC, सो दिस हैज टू बी 1 and 5 में चेंज हो गया, सो इसके पास 1 RE पहले से था और यहाँ से 1, सो दिस विल बी, यहाँ पे 2 बचा था ना, 2 में यहाँ पे 1 हो जाएगा एंड दिस विल बी 3 RE, ठीक है। दिस इज डन एंड आफ्टर दिस अब 2 and 4 में भी तो चेंजेस होने वाले हैं, T2 एंड T4 में क्या चेंजेस हैं, देखो यहाँ पे AC जाएगा और RE आएगा। अब T2 में देखते हैं 1 AC है, हाँ 1 RE इसमें चला जाएगा, सो दिस विल हैव 1 AC से 2 AC हो जाएगा, 2 AC हो गया तो यहाँ पे 4 AC बचेगा, क्योंकि 5 थे तो 1 चला गया, बचेगा कितना, 4 AC बचेगा, सो दिस इज 4 AC, और यहाँ पे 3 RE है तो 1 RE वहाँ पे चला जाएगा, तो दिस विल बिकम 2 RE, और यहाँ पे कितना बचेगा, 1, सो दिस विल बी 1, दिस इज 1, दिस इज 1, 4 and 5, ठीक है। एंड T3 के साथ ऐसा कोई चेंज नहीं करना है, तो क्या होगा, T3 तो एज इट इज रहेगा, सो दिस विल बी 2 AC एंड 2 RE। ये देखो सेकंड मंथ भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। नाउ लुक एट द थर्ड मंथ। थर्ड मंथ में हो क्या रहा है, चेक करो। थर्ड मंथ में हो रहा है T2 से चैलेंजिंग प्रोजेक्ट T3 में जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो T3 के पास 2 AC है और 2 AC किससे आएंगे, T2 से आ जाएंगे, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, थर्ड मंथ में T3 के पास चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है तो इट विल हैव 4 AC, और 4 AC है और 1 RE चला जाएगा तो बचेगा कितना, 1 RE बचेगा, ठीक है। अब T2 के पास क्या बचा, T2 के पास से 2 AC T3 में चला गया तो इसके पास 2 SE बचा, और 1 RE T3 से T2 में आ गया तो इसके पास 1 RE बचेगा, सॉरी 1 RE पहले से था, एक और मिल गया तो कितना हो गया, 2 RE हो गया, ये हो गया, ये चेंज हो गया। अब उसके बाद फिर से T1 एंड T5 में चेंजेस होने वाले हैं। अब देखो T1 में कितने थे, T1 में यहाँ पे 1 AC है तो वो कहाँ पे चला जाएगा, T5 में चला जाएगा, सो दिस इट विल हैव 0 SE, ठीक है। अगर इसके पास 0 AC हो गया तो इसके पास कितना हो गया, 2 SE हो जाएगा। अब यहाँ से 1 RE T5 से 1 RE T1 में चला जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, सॉरी दिस हैज टू बी 1 + 3 0, दिस हैज टू बी 0, सो आई एम सो सॉरी, दिस हैज टू बी यहाँ पे 4 RE होगा, दिस इज 4 RE, सो दिस हैज टू बी 3, यहाँ पे 3 बनेगा और यहाँ पे 2 RE बनेगा, यहाँ पे 2 RE। आई थिंक ये आप ठीक कर लेना कि यहाँ पे गलती से 3 RE लिखा हुआ था, 0 प्लस हम लोगों को 4 टोटल लाना था तो यहाँ पे 3 नहीं 4 होगा। अब 4 में से 1 चला गया कहाँ पे, पहले मंथ में चला गया कहाँ पे, सेकंड वाले मंथ में 1 चला जाएगा, 1 RE चला जाएगा टीम 1 में, तो यहाँ पे 3 बचेंगे और फिर एक और चला जाएगा तो 2 AC 2 RE। अब यहाँ पे एक भी AC नहीं बचेगा और 3 RE पहले से थे टीम 1 के अंदर, अभी कितने हो जाएंगे, 1 RE चला जाएगा T5 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 + 1, दिस विल बी 4 RE, ये हो गया। नाउ अब चेंजेस किस में करने पड़ेंगे, T2 एंड T4 में वापस से चेंज करना पड़ेगा। अब देखो T2 में देखते हैं, T2 से 1 AC T4 में आएगा तो पहले से यहाँ पे 2 AC है तो कितने बचेंगे, 3 SE हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे 1 AC बचेगा, ठीक है 1 AC, और यहाँ पे 2 RE था तो 1 RE बचेगा, क्योंकि 1 RE T4 से T1, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस विल बी 1 and 3, दिस इज 1 AC बचेंगे और 3 RE बनेंगे। हमारा तीसरा मंथ भी कंप्लीट हो गया, लाइक थर्ड रो। फोर्थ में देखते हैं अब क्या होगा, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट कहाँ चला गया, T4 के पास, नॉट T4 इज डूइंग द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, राइट। तो अब T3 से 2 लोग इसके पास आ जाएंगे, तो T4 में देखो कितने लोग हैं, अभी 3 लोग हैं, 3 AC हैं, तो 2 AC और आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 AC हो जाएंगे, और 1 RE चला जाएगा तो यहाँ से 2 निकल गया तो यहाँ बचेगा सिर्फ 2 AC बचेगा, है ना। अब यहाँ पे 1 RE है तो 0 RE बचेगा, क्योंकि एक तो इसमें चला जाएगा, T3 में चला जाएगा, तो इट विल हैव 2 SE, ये हो गया। तो T3 T4, अब T2 T4 में चेंज देखते हैं, T1 T5 में पहले देख लेते हैं। T1 T5 में अब कोई एक्सचेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि T1 में SE देने के लिए है ही नहीं, तो एज इट इज कोई एक्सचेंज नहीं होगा, 0 SE रहेगा और 4 RE रहेगा। अब T2 T5 में देखो, T2 में 1 AC तो है, तो 1 AC है तो T5 में 1 AC चला जाएगा,
सो दिस विल बी 3AC और यहाँ से 1RE कहाँ चला जाएगा, सो दिस विल बी 0AC और 4RE, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2RE था तो 1RE बचेगा, राइट। ये चौथा महीना हो गया, ठीक है। फिफ्थ मंथ में देखते हैं, अब T4 से अब T5 विल हैव द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, है ना, तो इसके पास 3 SE है, नॉट SR, SE 3SE है, तो T4 से इसमें 2 लोग आ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 3 + 2 5SE हो जाएंगे, 5SE और 0 बनेगा RE, ठीक है, 0RE। अब यहाँ से 2 लोग आ गए हैं तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 3SE SE और यहाँ से 1RE इसमें आ गया, ठीक है। सो दिस विल बी 1RE, ठीक है। नाउ इट विल हैव 0RE, ठीक है। नाउ अब T2 T4 में चेंज देखते हैं, T2 T4 से नहीं हो सकता है चेंज, क्यों, क्योंकि T2 के पास T4 देने के लिए AC है ही नहीं, तो 0AC बनेगा और 4RE बनेगा, है ना। और T1 T5 में भी नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि T1 और T5 में भी सेम ही है, मतलब यहाँ पे T1 को AC देने, T5 को देने के लिए AC है ही नहीं, तो ये बनेगा 0AC एंड 4RE, ठीक है। एंड T3 एज इट इज रह जाएगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सो दिस विल बी 2AC और 2RE। दिस इज हाउ आपको टेबल बनाना था। इंटरेस्टिंग है, सेट कैट 2017 में आया था, इंटरेस्टिंग है। टेबल एक बार आप पहला एक कॉलम या एक रो फिल कर लोगे तो आराम से बाकी अपने आप ही फिल होने लगते हैं बेस्ड अपॉन द कंडीशंस, राइट। सो अ सेट विच इज इंटरेस्टिंग, राइट। नाउ एक बार फटाफट इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी है उसको सॉल्व कर लेते हैं। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, the number of time in which the composition of team T2 and the number of times in which composition of T4 remain unchanged in 2 successive months। देखो T2 and T4 में क्या हुआ, कोई चेंज नहीं आना चाहिए 2 सक्सेसिव मंथ्स में, देखते हैं। चलो सो यहाँ पे अगर आप देखो T2 में देखते हैं, T2 में फर्स्ट में चेंज हो गया, फर्स्ट टू सेकंड में चेंज हुआ, सेकंड टू थर्ड चेंज हो गया, थर्ड टू फोर्थ चेंज हो गया, फोर्थ टू फिफ्थ, यस एक बार है यहाँ पे 1 है, दिस इज 1, हाँ चेंज एक बार सेम रह गया, ठीक है। अब T4 में देखते हैं, हम लोगों को चेक करना है T2 एंड T4 में। T4 यहाँ पे चेंज हो गया, फिर यहाँ पे चेंज हो गया, फिर यहाँ पे चेंज हो गया, फिर यहाँ पे चेंज हो गया, सो द आंसर विल बी 1,0 1,0 सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ AC in T1 and T5 for the project in the third month is देखो थर्ड मंथ के अंदर T1 एंड T5 में कितने ACs हैं, थर्ड मंथ T1 एंड T5, यहाँ पे 0 है और T5 में 2 है, 0,2 इज द करेक्ट आंसर, 0,2 फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following cannot be the total credit points earned by any employee in the project, ठीक है। देखो अब एक चीज आपको ध्यान से यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमारे पास टोटल देखो यहाँ पे ये देखो ईच स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट इज ऑफ 100, स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट्स कितने हैं 100 है। अब स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट्स में कितने लोग होते हैं 4 लोग, तो डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा, विच इज इक्वल्स टू कितना 25। दैट मीन्स स्टैंडर्ड पॉइंट्स स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर जो भी पॉइंट्स मिल रहे हैं वो क्या जाएंगे, इंडिविजुअल पॉइंट्स कितने होंगे 20 होंगे। अगर मैं CP बात करूं मतलब चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो वो 200 नंबर का होता है और 200 और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं 5 है, 200 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 40। मतलब अगर आप चैलेंजिंग प्रोजेक्ट करोगे तो 40 क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे इंडिविजुअली, एंड आप अगर स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट करोगे तो 25 क्रेडिट्स पॉइंट मिलेंगे। और एक आदमी एक एम्प्लॉय क्या कर सकता है, वो एक भी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट नहीं कर सकता है या फिर पांचों के पांचों चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, लेट्स मेक अ टेबल आउट ऑफ दिस, लेट्स अ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट एंड अगर मैं स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट की बात करता हूँ, लेट्स से द चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स को मैं x ले लेता हूँ। अगर चैलेंजिंग प्रोजेक्ट x है तो स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट कितने हो जाएंगे 5 - x हो जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर मैं x एंड 5 - x, तो अब सोच के देखो अगर मैं x नंबर ऑफ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स करता हूं तो मेरे को पॉइंट्स कितने मिलेंगे 40x। अगर मैं एक 5 - x नंबर ऑफ स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट्स करता हूं तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे 25 × 5 - x, ठीक है। अब अपने पॉसिबिलिटीज, लेट्स से समवन इज डूइंग 0 0 0 चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स, तो उसके ये वाले प्रोजेक्ट कितने हो जाएंगे 5, ठीक है। तो 5 × 40, सो आई एम गेटिंग 40 पॉइंट्स फॉर दिस, आई एम जस्ट आई राइट दिस, तो यहाँ पे 40 लिख दिया। सो चैलेंजिंग प्रोजेक्ट के लिए 50, स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए 25, ठीक है ना। सो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा 0 मिलेगा, राइट।
So अगर if I'm doing 0 challenging projects and 5, so this will be यहाँ 0 and 25 into 5 is 125, so I'll get 125. यहाँ से हम लोगों को 125 पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे वन प्रोजेक्ट करूँ विच इज़ चैलेंजिंग एंड बाकी के 4 स्टैंडर्ड, तो ये कितने हो जाएंगे, 10 विल बी 140 पॉइंट्स मिलेंगे हम लोगों को। दिस इज 40 पॉइंट्स एंड 25 इंटू 4 40 140 हो गया, ठीक है। अगर मैं 2 चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स करता हूँ तो स्पेशल प्रोजेक्ट्स स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट्स कितने करूँगा, 3, सो दिस विल बी 80 प्लस 75, सो 75 प्लस 80 दिस इज 155, तो ये हो जाएगा टोटल 155 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर मैं 3 चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स करता हूँ और 2 नॉर्मल प्रोजेक्ट्स करता हूँ तो ये हो जाएंगे 120 प्लस 50 इज 170, वो मेरे को 170 पॉइंट्स। अगर मैं 4 चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स करता हूँ तो 1 स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट्स हो जाएगा, सो दिस विल बी 160 प्लस 25 दिस इज 185। एंड अगर मैं पाँचों के पाँचों अगर स्टैंडर्ड चैलेंजिंग प्रोजेक्ट करता हूँ तो 0 एक भी स्पेशल स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट नहीं होगा, सो दिस विल बी हाउ मच, 40 into 5 दिस इज 200। सो द पॉसिबल मार्क्स यू कैन से और द पॉसिबल क्रेडिट पॉइंट्स इज 125 140 155 170 एंड 185 एंड 200। ओके, एक बार चेक करो ऑप्शन में 140 है हमारे पास, पॉसिबल है, तो दिस कैन नॉट बी आंसर। 150 नहीं है, सो 150 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, 150। सो दिस इज नॉट अ पॉसिबल क्रेडिट पॉइंट फॉर एनी एम्प्लॉय, राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन, one of the employee named Anik scored 185 points। एक आदमी, एक बच्चा है, इसको कितना, एक एम्प्लॉय है जिसको 185 पॉइंट्स मिले। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू, अनिक वर्कड ओनली इन टीम 1 2 3 एंड 4। ओके, ठीक है, 185 पॉइंट्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे। सो 185 पॉइंट्स लाने के लिए फॉर 185 पॉइंट्स अ पर्सन नीड टू वर्क इन 4 चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स एंड 1 स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट। चार किसमें, 4 आपको चैलेंजिंग प्रोजेक्ट करना पड़ेगा और 1 स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। तो द फर्स्ट ऑप्शन, अनिक वर्कड ओनली इन टीम 1 2 3 एंड 4, टीम 1 टीम 2 टीम 3 एंड टीम 4, ठीक है। चलो देखते हैं। सो लेट्स सपोज कि यहाँ पे अगर टीम 1 के अंदर 4 एसीज है, 4 एसी है, उसमें एक अनिक हो सकता है, ठीक है। अब 4 में से टीम 2 में चले गए 2 लोग, जब चैलेंजिंग प्रोजेक्ट T2 हैंडल कर रहा था, तो यहाँ से 2 एसी तो हो सकता है, अनिक उनमें से 2 में से एक अनिक हो। फिर T2 से T3 में जब चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, जब T3 को नया चैलेंजिंग प्रोजेक्ट मिला तो यहाँ से भी 2 लोग यहाँ पे आ गए थे, उसमें भी एक अनिक हो सकता है, तो अनिक T1 T2 T3 में काम कर सकता है, और उसके बाद वो T4 में भी जा सकता है, T3 से भी तो 2 लोग T4 गए। हाँ, दिस इज अ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि अनिक है जो T1 T2 T3 T4 में काम कर सकता है। सो दिस इज अ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, और अगर ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है तो ये आपका आंसर नहीं है, सो दिस कैन नॉट बी माय आंसर, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देख करते हैं, अनिक वर्क फॉर T1 T2 नॉट T3, फिर 4 एंड 5। चलो ठीक है, 1 2 4 एंड 5, चलो देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं। तो मैं फिर से बोलता हूँ कि T1 में अनिक, यहाँ पे 4 एसीज में से एक एसी मेरा कौन है, 4 एसीज में से 1 एसी मेरा अनिक है। तो T1 से T2 जा सकता है, हाँ जा सकता है, क्योंकि जो चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है उसके साथ उसको शिफ्ट होना था, तो हो गया T1 से T2। अब T2 से T3 नहीं जाके व्हाट इफ अगर मैं तुमको बोलूं कि देखो क्या हुआ, T1 से T2 आ गया और T2 से वो सीधे T4 जा सकता है। देखो T1 से T2 से एक एसी T4 पे जाता है ना, T1 से एक आदमी T2 आया और T2 और T4 एक्सचेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है T1 एंड T2, वेयर इज दैट, यस, in T1 if T1 has any AC and T4 and any RE, तो मैं बोल सकता हूँ कि जब यहाँ पे 4 AC था, उसमें एक अनिक था, उसमें से 2 जब एक आ गया तो अनिक ही यहाँ पे चला गया। अब वो T4 में आ गया और T4 से क्या वो T5 में जा सकता है। T4 में मान लो T4 में यहाँ पे AC काम किया, फिर यहाँ पे भी काम किया, फिर यहाँ पे भी एक काम किया, ठीक है। तो लगातार यहाँ पे काम करके पहुंचा और फिर यहाँ से 2 लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए, उसमें भी एक अनिक हो सकता है। हाँ, दैट्स अ पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल है तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। आई थिंक ये आप समझ चुके हो। देखो मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ कि इन 4 एसीज में से एक एसी एक अनिक है, फिर यहाँ से 4 में से 2 लोग यहाँ पे आ गए, T2 में आ गए, तो उन 2 लोगों में से अनिक हो सकता है, हाँ हो सकता है। फिर T2 से वो अगले महीने T4 में चला गया, क्यों, क्योंकि T1 एंड T4 में एक्सचेंज होना होता है, तो वो T4 में आ गया।
फिर 2 महीने T4 में काम किया एंड देन जब यहाँ से T5 में से 2 AC जब T5 में आ गए तो यहाँ पे वो 2 में से एक अनिक हो सकता है, तो वहाँ हो सकता है वो T1 T2 T3 में बिना काम किए हुए T4 T5 में काम कर ले। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कॉम्बिनेशन, तो ही इसलिए आपका आंसर नहीं है ये। अगला, अनिक वर्कड इन T2 T3 T4 एंड T5। यस, ऑब्वियसली कर सकता है। अगर मैं यही बोलूँ कि T1 वो T2 में काम किया पहले, फिर T2 में ही अगले महीने भी T2 में काम किया, फिर T2 से T3 में शिफ्ट हो गया, फिर T3 से T4 में शिफ्ट हो जाएगा, फिर T4 से T5 में सेलेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, पहला दूसरा तीसरा ये तीनों ही हमारे ऑप्शन नहीं है, राइट। ऑब्वियसली मेरा आंसर क्या होगा, फोर्थ विदाउट चेक किए हुए भी आप कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज नन ऑफ दिस मेरे ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो लास्ट फाइनली एनीवे 3 अगर ऑप्शन नहीं है तो चौथा तो होना ही है। अच्छा, एक चीज मैं और आपको इसमें समझाना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि एक सेट में अगर 5 क्वेश्चन है या 4 क्वेश्चन है तो वो सारे आपसे बने ही। जैसे फोर्थ वाला क्वेश्चन बस टाइम टेकिंग थोड़ा सा, या हो सकता है कि लोगों को नहीं भी समझ में आए, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने एक सेट अगर सॉल्व कर लिया तो उसके 4 या 5 जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो सारे के सारे सॉल्व हो जाए। अगर 4-5 क्वेश्चन है और 4 बहुत ईजिली सॉल्व हो गया, एक डिफिकल्ट लग रहा है, डोंट हेजिटेट टू स्किप दैट क्वेश्चन। उससे अच्छा है कोई नया सेट आप ट्राई कर लो, ठीक है। This strategy is you can apply in your mocks as well as your actual CAT. So finally we have done this set and hope you have enjoyed this. If you are liking the session, please subscribe to the channel and also press the bell icon to get all the contents. If you are liking the contents, please press the like button, and also if you have any doubt related to any part of this video, please let us know in the comment section. And thank you for watching the video. Thank you so much.